Okay, again I am saying you very good afternoon. See, there is a well of radii 3.5 meter. 3.5 meter. This is the well of radius 3.5 meter, and the depth of the well is 14. Means actually what you did, you have dug out all the soil inside from this cylindrical well, okay, and you spread it all around the well, all around the well. You can say the width of this embankment, you can use this word embankment, okay, and this embankment is of 3.5 meter more. Understand? So now all the soil of this well is spreaded all around the well. Now, what is the height of the embankment? Find the height of the embankment. How will you find it? See, I am repeating the question again. You are digging out soil inside from a cylindrical well of radius 3.5 meter. The radius is 3.5 meter and the depth of the well is 14 meter. Means you created the well, and all the earth dug out from this well is spreaded around the width of 3.5 meter. This is the width. Then Sir, you have to find the height of the embankment. Please say. If you have any question, please ask. sir, we Huh. will divide the volume of well with the area of the embankment. Of course, your concept is good, but how to find the area is a question. Okay, because area of embankment, I don't know. It is a really good tricky part of this question. Ki how will you find the area of the embankment? Who knows how to find the area of embankment? I think Utkarsh is saying na area of embankment. Embankment into height is the equal to total volume of well. total earth dug out. Total earth dug out from cylindrical well. From cylindrical well. Clear? This is the according to question. But how will you find the area of embankment is still a question. Now So please pi say. greater r square minus smaller r square. Okay, who is this? कौन ये बोल रहे हैं बताइए बेटा. Rupesh Kumar. नाम एक बार फिर रिपीट करेंगे बेटा. रुपेश सर। रुपेश, आपने बिल्कुल सही बताया क्योंकि ये जो एम्बैंकमेंट है वो रिंग के फॉर्म में है. मतलब कि ये Yes, sir. कुआं है और ये उसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट है. तो मिट्टी जहाँ से निकालना है वो ये हिस्सा है, और मिट्टी निकालने के बाद इस मिट्टी को आपको यहाँ डालना है. ठीक है ना, इस मिट्टी को निकाल के आपको अलग डालना है. ठीक है. हेलो. हाँ, गुड आफ्टरनून. मैंने बस यूं कॉल किया था कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज्वाइन कर पा रही हो ना आप? ठीक है बेटा. ओके, गुड डे. टेक केयर. हाँ बेटा, तो यहाँ देखो. तो यहाँ क्या है कि ये रिंग का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, वो हो जाएगा पाई ग्रेटर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड इनटू हाइट that is not known and we have to find this. And what is the formula to find all the earth dug out from the cylindrical well? That is pi small r square greater h. Clear? Any doubt? बोलिए. So this is the according to question. Now see, here pi and again here pi will cancel out. Okay. Capital radius means 3.5 plus 3.5. Total distance from here to here is 7. Means 7 square minus 3.5 square. Into height is equal to a small r is 3.5 square and this height is 14. Now
calculate h. See, 3.5 into 3.5 into 14 divided by 7 square minus 3.5. You can write it as 7 plus 3.5 or 10.5 into 7 minus 3.5, that is 3.5. Now you can easily calculate it. These two will be divided. 3.5 3 ja. So 14 by 3 meter is the height of the embankment. That is 4 whole 1 by 2 by 3. 4 whole 2 by 3 meter is the height of the embankment. Clear? क्लियर है रुपेश? Yes, sir. ओके, चलिए अब मैं और आप लोगों के क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन जरूर ले ही लो इनसे आर एस अग्रवाल का, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है. चलिए बेटा, यू कैन रीड द क्वेश्चन और प्लीज प्लीज रीड लाउड द क्वेश्चन ऑफ आर एस अग्रवाल. हु आस्क्ड? Sir, the height of a cone is 30 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. एक मिनट एक If मिनट its एक volume मिनट be एक 1 मिनट by एक मिनट एक 27 मिनट of एक the मिनट volume एक मिनट एक मिनट. देखो बेटा, मैं समझ गया आपके क्वेश्चन में कुछ 1/27 के रेशियो में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, इसमें हम लोग एक सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. इस क्वेश्चन में हम क्या पढ़ते हैं? सिमिलर ट्रायंगल. और आप लोगों को अभी तक सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया नहीं गया है. क्लियर? ये सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि जब कभी भी कोई प्लेन कट करता है, एंड इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, इफ दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस, तो हम देखते हैं कि ये जो छोटा वाला रेडियस है और ये जो बड़ा वाला रेडियस है वो क्या होगा? एक फिक्स रेशियो में होगा. सेम ये छोटा वाला रेडियस और ये जो बड़ा वाला रेडियस है वो भी क्या होगा? सेम रेशियो में होगा. ये जो छोटा स्मॉल एल है और ये जो बड़ा वाला एल है वो भी सेम रेशियो में होगा. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, जो हम क्लास 10th के क्वेश्चन में पढ़ते हैं. और ये क्वेश्चन अब आपको बनाने को नहीं आता क्योंकि ये पार्ट फ्रस्ट्रम बन जाता है. देखिए, फ्रस्ट्रम क्या होता है कि जब भी कोई कोन से आप कोई पर्टिकुलर हिस्सा कट करते हो, ऊपर का हिस्सा कट करते हो, तो ये इस तरह का फिगर बनता है, बकेट टाइप. और इस फिगर को हम लोग कहते हैं फ्रस्ट्रम. क्या बोलते हैं हम? फ्रस्ट्रम. इसे हम छोटा रेडियस बोलते हैं और इसे हम बड़ा रेडियस बोलते हैं, ठीक है. तो ये पार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और आपको अभी सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा ही नहीं गया है, मतलब आपने केवल अभी किया है एमपीटी, मतलब मिड पॉइंट थियरम. तो जब केवल आप मिड पॉइंट थियरम करोगे और सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा, तो मैं अगर h बाई h का रेशियो, r बाई r का रेशियो, स्मॉल l बाई कैपिटल L का रेशियो, या दूसरे वर्ड में मैं कहूँ तो स्मॉल h बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h, स्मॉल r बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और स्मॉल l बाई कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ये अगर कुछ कंडीशन बताऊंगा तो ये बेईमानी होने लगेगी. तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो आता है. क्योंकि आपको ये तो पता है कि स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस है. तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. क्लियर है? तो ये रेशियो में ही बनेगा, समझ गए. और 1/27 जो है ना, ये कुछ इस तरह का पार्ट है, समझ गए. लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप लोग करोगे मेंसुरेशन अच्छे से तो लास्ट में जरूर जाओगे. बट हियर आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल 40 स्टूडेंट. सो गो ऑन आस्किंग अनदर क्वेश्चन दैट शुड हैव, आई विल अप्रिशिएट इफ द क्वेश्चन बिलोंग टू दिस बुक. 13.7 का मान लिया जाए, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, not 13.7, it is from 13.6 first, because I have to see whether you know the concept of cone or not. See, let question number 7. Now this is, who will read this question? Utkarsh, please go on reading the question.
Utkarsh, Yes, sir. The question number please 7. explain the question. Yeah, question number 7, that is on your screen. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. Wait, The wait, wait, diameter of wait, the wait, pencil wait, is wait. Okay, only up to this statement, you have got that the consist of cylinder of wood means the pencil is made by using wood, but there is a small cylinder inside this pencil that is made up of graphite. lead. Okay, now Yes. you can move forward. See, read. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. Okay, so this question says that this is the hollow cylinder where Yes, sir. the So the pencil is internal hollow cylinder. where the internal radius is the radius of the graphite, okay, and the greater radius, that is the radius of wood plus graphite. So if you want the volume of only wood, then you require to find the formula of pi greater r square minus small r square into h. This Smaller. will be there. H. This will be the volume of wood. But if you want to find the volume of Yes, sir. graphite, this will be pi small r square h. Sir, pi r square h. Pi small r. क्लियर दिख रहा है बच्चों? Yes, दिख sir. रहा Yes, है? sir. तो यहाँ बताओ आप यूनिट का भी ध्यान रखना कि ये 1470 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, बट हियर इज एम एम. तो हु कैन से कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एम एम टू सी एम? बोलो बच्चों, किसी को पता है? Sir, 1 1 by centimeter 10. is equal to, yes, sir. Sir, 1 1 by Divide by centimeter 10. is 1 by equal to 10 mm. So 14 centimeter will be equal to 140 mm. 1 centimeter is equal to 10 mm. So 1 mm is equal to 1 by 10 cm. ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो mm को cm में चेंज करो, तो mm को cm में हम चेंज करेंगे 0.1 cm, है ना, और यहाँ cm में है, तो वॉल्यूम ऑफ द Yes, वुड sir. निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला यूज करो, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट निकालना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, बन जाएगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 Yes, sir. Yes, sir. बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, उसके बाद 13.8 में आएंगे. बोलिए. बोलिए बेटा. क्या कह रहा है क्वेश्चन? जरा मैं आप लोगों को एक बार देखूं. बोलिए शिवेश, बोलिए बेटा, क्या है क्वेश्चन प्लीज. अनुप्रिया बोलिए. Sir, See, the diameter of a cylindrical ball is given 7 centimeter. good. See, a And patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl. जनरली हम लोग क्या जानते हैं, हेमिस्फेरिकल बाउल, लेकिन यहाँ सिलिंड्रिकल बाउल दिया हुआ है जिसका डायमीटर 7 है. इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप to height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? See, one thing very important, find the volume of soup at height दिया हुआ है, height is equal to 4 4. centimeter only, and this is the volume of cylinder whose formula is pi r square h. But this is soup, that soup is meant for one body only, one patient, okay, where height is taken as 1 4 percent. centimeter.
But if you have to Sir, distribute your this, screen is not sharing, sir. my screen is not visible. बेटा दिख रहा है कि नहीं No, आप sir. लोग को? You are not sharing it, sir. Oh, No, sir. it was being shared, but maybe I am just. Oh, and previously it was shown or not? बेटा Yes, Yes, sir. sir, it's पहले shown. दिख रहा था कि नहीं? Yes, sir. सर ओके पहले दिख ओके, Yes, रहा sir. Yes, था, sir. अब नहीं दिख रहा है. अब दिख रहा है? Now it is represented. ओके ओके. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now it is visible. Now see, the volume of the soup Sir, now meant. clear. Thank you, thank you. The volume of the soup meant for 1% is pi r square h, where height is equal to 4 centimeter. But what you require to find soup required for 250%, means required quantity of soup, required quantity of soup, then the answer will be 250 into pi, means 22 by 7, r, that is 7 centimeter, and h is 7 4 into centimeter. 7. Clear? And now this will be the answer. Yes. This centimeter cube, or you can change this centimeter cube into milliliter also, because 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter. 1000 centimeter cube is equal Sir, to. 7 is diameter. Oh, sorry. Then you have to divide this by 2. 7 is the diameter. See, let's see. Yes, 7 is the Yes. diameter, then radius will be 7 by 2. Now see, this 7 will cancel out, and 4 will also be cancelled out from these two, and multiply 250 into 22 into 7. This will be the quantity in centimeter cube as well as milliliter. If the number goes or beyond 1000, then you can divide this number by 1000 to get the soup in liter also. So you can find that much liter soup is required. Okay, now you can do this by doing this calculation. 250 into 22 into 7 whole divided by 1000. 254 ja. 2 2 ja and 2 say 11 ja. 38.5 liter. Is 77 by 2. 77 by 2 means 38.5 liter is the answer. Good. किसने बोला ये answer? Very good. Sir, Sivesh. सिवेश वेरी गुड बेटा. चलिए अब हम आ सकते हैं 13.8 के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि ये आपका हो रहा था, तो इससे 13.7 का क्वेश्चन बचा हुआ है. चलिए इससे एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. नहीं, क्वेश्चन एक मैं पूछता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप बना पाते हैं कि. चलिए, देयर इज ए टॉय एंड दैट इज इन द शेप ऑफ कोन विथ हेमिस्फेरिकल एंड. ये जो कोन है और बीच में जो हेमिस्फीयर है, ये दोनों मिल करके एक खिलौना बना रहा है, जिसका टोटल हाइट है 10.5 सेंटीमीटर. कितना है टोटल हाइट? 10.5 सेंटीमीटर. ओके, वेयर रेडियस ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर. तो फाइंड करना है नंबर 1 वॉल्यूम और नंबर 2 टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया फटाफट फाइंड कीजिए. तो दिस इज अ टॉय ऑफ टोटल हाइट 10.5. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन टॉय, वेयर द रेडियस ऑफ द टॉय इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर. डू इट क्विकली. Sir, which question number is this? No, I have asked a question. This is Sir, my given. question. I have given this question.
बोलिए बेटा. Or somebody can say कि sir we use this to find the value of this. Okay, how to find the volume? Who will answer me? Sir, base area into height. Base area into height is the absolutely wrong concept. The What? volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone plus Sir, volume. volume of the hemisphere. Is the right answer. ये Yes, बच्चा sir. बिल्कुल सही है. Volume of cone and volume Good, hemisphere. good. यानी volume of cone plus volume of hemisphere is the right concept. क्या नाम है आपका बेटा? नाम बताइए. कोन का हाइट क्या होता है? Sivis, what is the formula to find the volume of the cone? 1/3 pi r square h. Good. 1/3 pi r square h. बिल्कुल सही है सिविस. और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 pi r cube. Sir, बिल्कुल 2 सही by है. 3 pi r cube. बिल्कुल सही. तो अब देखो आप कि ये वॉल्यूम निकलेगा, लेकिन हाइट ऑफ द कोन में हम क्या करेंगे? ये 3.5 माइनस करेंगे, क्योंकि जो सिलेंडर हेमिस्फीयर जो है उसका भी तो रेडियस नीचे से हो गया. तो 10.5 में जब माइनस करेंगे 3, Yes, तो sir. हाइट ऑफ द कोन बचेगा केवल 7 7 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही. नाउ 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ क्या बचेगा? h प्लस 2r. यही बचेगा ना बच्चों? Yes, sir. अब सॉल्व कर लेंगे हम. Yes, sir. आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 3.5 और h इज 7 प्लस 7 दैट इज 14. और अब कैलकुलेट कर लेंगे हम. 7 से 14 2 बार में कट गया, आ जाएगा वॉल्यूम. नाउ हाउ टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कंबाइंड कोन? ये मुझे आंसर चाहिए. प्लीज आंसर मी. बोलिए. Sir, volume is the 224.5833 approx. ठीक है, करेक्ट. इफ यू सॉल्व, इफ यू कैलकुलेट, वी विल फाइंड द करेक्ट वैल्यू. प्लीज. Yes, sir. Sir, the total sum surface of area of the toy will be sir, curved total surface sum area of pi the r. cone plus curved surface area of hemisphere. अच्छा, लेट उत्कर्ष टू से. उत्कर्ष प्लीज से अगेन. आई वांट टू हियर. Sir, to find the total surface area of the toy, we will find the curved surface area of the cone and the curved surface area of hemisphere, and then we will add the both. ओके, कौन कौन बच्चा कहेगा कि ये सही बोला है? उत्कर्ष ने कहा कि सर टोटल सरफेस या एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेना है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेना है. ये उत्कर्ष का कहना था. तो बच्चों सही है या गलत है? यानी उसने कहा कि पाई आर लेना है और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लेना है. सही है सर. It is right, sir. तो चलो उत्कर्ष, तुमको इतना वोट मिल गया, मतलब यू आर राइट. गुड. तो ये बिल्कुल सर नेटवर्क बहुत स्लो जा रहा है, आवाज नहीं आ रहा है. अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? लेकिन बच्चे का रिस्पॉन्स आ तो रहा है मुझे सर, मिल रहा है. आपका नेटवर्क बेटा थोड़ा sir, दिक्कत audible. हो रहा होगा, बट आई थिंक ऑल अदर स्टूडेंट आर गेटिंग माय वॉइस क्लियर. चलिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था. चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. देखिए, हाँ, एक बात बताओ. चलो आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर. क्लियर? मैं बता रहा हूँ आपको, एक एज्यूम करने का एक मौका दे रहा हूँ कि आपको समझना है कि ये एक लड्डू है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और आप इस लड्डू बनाने वाले दुकान के मालिक हो. और आपसे मैंने बोला कि भैया मुझे एक दूसरा लड्डू बना के दो जिसका रेडियस हो 8 सेंटीमीटर. तो आप ये 1 सेंटीमीटर वाले लड्डू को 10 रुपये में बेचते हो. 10 ओनली 10. तो मुझे बताओ कि मैं जब 8 सेंटीमीटर का आपको ऑर्डर दूंगा तो आप मुझे इसका दाम क्या बताओगे अंदाजन? बताओ.
180. चलिए, एक बच्चा बोल रहा है 180। सर 180 83. चलो, कुछ बच्चे मेरे पहले भी क्लास में मौजूद रहे हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कुछ बच्चों के पास शायद करेक्ट आंसर हो। चलिए, ये किसने बोला, मुझे नाम बताइएगा बेटा। 5120। हाँ, नाम बताइए आप अपना, नाम बताइए। 5120, नाम बताइए बेटा। ये कौन बोला था, नाम नहीं बता। विनायक। चलिए विनायक, ठीक है। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर मैं हाँ विनायक, मैं सुन लिया। देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ द बिगर विनायक। हाँ विनायक, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है, बट बाकी आवाज लोग सुन चुके हैं आपकी। चलिए देखिए, यहाँ वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर को हम जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी बड़ा वाला जो लड्डू है उसमें छोटा वाला लड्डू कितना बन जाएगा। तो हमने क्या किया, बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे से डिवाइड करना है। 4/3 तो कट गया, बड़ा रेडियस है 8 का, तो 8 का क्यूब, छोटा रेडियस है 1 का क्यूब, और 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि 512 लड्डू हमें बनेंगे। छोटे वाले लड्डू 512 मिलाएंगे तब ये बड़ा वाला लड्डू बनेगा। इसका मतलब कि हम अगर 180 में बेचते तो बहुत बड़ा घाटा होता, हमें बेचना होगा 5120 रुपये और उससे ज़्यादा में, तभी फायदा होगा। समझ गए? तो ये होता है रिजल्ट कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिकल यूज उसका आप सीखते हैं। समझ में आ रहा है?